Okay, so welcome you all to session 5 of the environment. So the question is, what is the difference between Stockholm Convention and Declaration? I guess we discussed this yesterday as well. Stockholm Declaration was there in 1972 for the environment management, and Stockholm Convention is for the POPs, pollutant, organic pollutants. Okay, and when was GEF was established? 1992. Okay, correct. And Green Climate Fund? ग्रीन क्लाइमेट फंड वो भी उसी के साथ हुआ था। नहीं, उसके साथ में हुआ था. There was a huge gap. 2010 में हुआ था. Copenhagen Summit 2010 2010. थी and then 2010 में वो finally establish हो गया. Okay, where was the Rio Plus 20 conference held? Rio Plus 20. 92 plus 20, that is 2012. And the place where it was held? That I am not sure. It may be Tokyo or something else. I'm not sure. वो भी सेम हुआ था ना, रियो डी जेनेरियो में हुआ था 2012 में. Yes, and where was plus 10 held? Rio Plus 10. Johannesburg, South Africa. UN Agenda 21 is a binding action plan. True, false? False. And what it is all about? Sustainable Development Goals. Correct. SDG 14 and 15 is related to? वो in water life और out water land, life on land. Correct. SDG 14 is Water, related life to on life, and SDG 15 is related to life on land. And sustainable goals were Regarding life below water and सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट्स जो है वो कब प्रपोज हुए थे? 2015 में ही ना. 2015. यस, ठीक है. हाँ, करने हैं, लाइक कब तक का टारगेट है अचीव करने का? 2030 को होगा. कोई म्यूट कर. यस, एसडीजी को 2030 तक वी हैव टू अचीव देम. ठीक है. देन क्योटो प्रोटोकॉल की गैसेस, वी आर जस्ट रिवाइजिंग द यस्टरडेज वन एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स टुडेज एजेंडा. ओके, सो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कितनी गैसेस एंड व्हाट आर द नेम्स? ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें 6 हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और 2 वो SF और एक PCF और SF ऐसे करके. Yeah, and also HCFS. Okay, so there are total 6 cases. Okay. Okay, so I'm having a question with me, so try to answer it. Okay, the question is regarding GCF, Green Climate Fund.
The first statement is it is intended to assist the developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change. True or false? ग्रीन हाउस गैस में फॉल्स. Okay. Then the second statement is it is founded under the aegis of UNEP, OECD, Asian Development Bank, and World Bank. फॉल्स. Why? उसमें IUCN भी इन्वॉल्व है ना. No. ठीक है, this is false, but the reason is not true. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. उसमें क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको असिस्ट करना है काउंटर करने के लिए क्लाइमेट चेंज को. एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो खाली UNFCCC का है. ठीक है, उसमें IUCN, ADB, वर्ल्ड बैंक किसी का भी कोई रोल नहीं. ओके, सो दैट इज सोनली अंडर द एजेस ऑफ UNFCCC. ओके. What do you mean by intended nationally determined contributions, which is also called as INDCs? Let me repeat it. Intended nationally determined contributions is sometimes seen in news is related to. इंडिया की कुछ वो हैं डेडलाइंस, मतलब एक क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरह कुछ डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो 2015 में कुछ टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं, वो उनको हम NDCs बोल देते हैं. This was asked in UPSC, and also what you have said is one of the option. Okay, so if you are saying that no, so वो तो totally गलत है. Please try it again. INDCs contributions. It is regarding the emissions. Okay, so that is to combat the climate change. It has a like big gamut. It is not only limited to the SDGs. ओके. What is the difference between UN Red and UN Red Plus? Red and Red Plus. Okay, so जो UN Red है, ठीक है, that is related to the deforestation and the forest degradation, means to reduce that. But in Red Plus, what happened is we have to reduce these things with the help of the sustainable development, means it is one step ahead UN Red. So UN Red is by FAO, UNDP, UNEP, whereas Red Plus is volunteered by UNFCCC. Okay, these are the two basic differences, and like question can be asked on these 2 points. Just remember, UN Red ka next step is Red Plus. UN Red mein what we have to do is we have to just reduce the deforestation and to like prevent the forest from degradation. But in Red Plus, we will be conserving them with the help of sustainable development and the conservation. After that, UN इसमें जिसमें UN Red है, ठीक है, that is by 3 organizations, that is FAO, UNDP, UNEP, whereas Red Plus जिसमें plus लगा है, that is only by UNFCCC. Okay. नाउ लेट अस सी वन क्वेश्चन ऑन दिस. ठीक है, तो क्वेश्चन है कि UN Red Plus पे आपको स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है. सो इसमें से इसमें कहाँ पे इसका लाइक गोल अकम्प्लिश हो सकता है. पहला है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, एंड थर्ड ऑप्शन इज पॉवर्टी को रिड्यूस करने में. प्लीज ट्राई क्या क्या हो सकता है UN Red का ऑब्जेक्टिव.
रिपीट करना मैम एक बार। ओके, सो यूएन रेड प्लस के कॉन्ट्रीब्यूशंस कुछ कुछ दिए हुए, इनमें से यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन सा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्जैक्टली। सो फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड इज रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, थर्ड इज रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। बायोडाइवर्सिटी वाला तो है, फॉरेस्ट वाला भी है, फॉरवर्ड थर्ड में थोड़ा है डाउट, फर्स्ट टू तो है। थर्ड भी इसमें हो जाएगा ना, क्योंकि वो असिस्टेंस दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही, तो एक हिसाब से दे आर एलिवेटिंग पॉवर्टी। एग्जैक्टली करेक्ट, बिकॉज क्या है ना, उसमें जो एफएओ है, एफएओ का जो गोल है वो एसडीजी को भी फुलफिल करना है, मतलब दैट वांट टू अकम्प्लिश द सस्टेनेबल गोल्स एज वेल। सो सस्टेनेबल गोल में पहला गोल ही पॉवर्टी रिडक्शन पे है, सो एसडीजीज विल बी कवर्ड बाय द पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, 2030 तक का ये भी गोल है, तो यूएन रेड है उसमें ये भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोकार्बन फंड जो है वो कौन मैनेज करता है? हु इज द मैनेजर ऑफ द बायोकार्बन फंड? ऑप्शंस आर यूएनईपी, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक। Okay, so biocarbon fund is regulated by World Bank, and that is a correct answer. There was a commission, okay, that came a long back on this climate change. Okay, so in that there was one more important coalition that is called as Climate and Clean Air Coalition. So anyone can tell me Climate and Clean Air Coalition क्या है? मतलब this was asked in UPSC. ओके, सो ये जो CCAC है, ठीक है, ये किसका प्रोग्राम है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूएनईपी का है। इसका काम क्या है? टू रिड्यूस द शॉर्ट लाइव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स विच आर इन द एटमॉस्फेयर। ओके, फॉर एग्जांपल शॉर्ट लिव्ड में कौन कौन से होते हैं? लाइक कार्बन हो गया, मीथेन वी हैव, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज देयर एंड HFCs। सो ये सभी क्या है? शॉर्ट लिव्ड कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो एटमॉस्फेयर में थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है। इसके लिए ये स्पेसिफिक कोalition था। ओके मैम। Okay, now let us move to next topic. So we have Arctic Council. Okay, just tell me Arctic Councils में कौन कौन से member है, या ये एक डिक्लेरेशन से बना था, उसका क्या नाम है? इसमें 8 मेंबर्स हैं आर्कटिक काउंसिल में, और इंडिया को इसमें वो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। और 8 मेंबर्स तो मतलब हैं, यूएसए है, रशिया है और कनाडा है, और एक दो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, इनमें नॉर्वे वगैरह। गोइंग तो इसमें कंट्रीज कौन कौन सी है ना, जस्ट रिमेंबर, सबसे पहले तो स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक में सब आ जाएगा। ठीक है, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। उसके बाद 2 लैंड वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट वन इज ग्रीनलैंड एंड सेकेंड वन इज फिनलैंड। ठीक है, एक और है आइसलैंड। उसके बाद वी हैव यूएसए एंड रशिया। ठीक है, सो दीज आर द 8 कंट्रीज। आर्कटिक काउंसिल बना, जो आर्कटिक काउंसिल था उसका फॉर्मेशन ओटावा डिक्लेरेशन से हुआ था। रिमेंबर ओटावा, OTTAWA। ठीक है, सो ओटावा से ये बना था। लाइक माइट बी इट कैन बी आस्क्ड इन स्टेज का जो प्रीलिम्स होता है, मतलब यूपीएससी में आई डोंट थिंक कि डिक्लेरेशन पूछ ले, बट माइट बी दे कैन आस्क। ठीक है, तो रिमेंबर दैट वाज ओटावा डिक्लेरेशन जिससे बना था, एंड आर्कटिक काउंसिल में देगा 8 मेंबर्स। Okay, so again UPSC already has asked the question on Arctic Council. ठीक है, so should I ask this? इसमें ये पूछा कि आर्कटिक काउंसिल के मेंबर कौन कौन से हैं, इन्होंने ऑप्शन दिए। सो ऑप्शन में कंट्रीज हैं, पहली डेनमार्क, जापान, थर्ड इज रशिया, फोर्थ इज यूके, फिफ्थ इज यूएसए। सो ट्राइड में से कौन कौन सी है? डेनमार्क, जापान, रशिया, यूके, यूएसए। जापान नहीं होगी और यूके नहीं होगी,
और यूएसए, रशिया और जो थर्ड था डेनमार्क, ये तीनों होंगी। Perfect. That is the answer. Okay. Now CPCB comes under which act? EPA 1986। Environment. This is second time this question is repeated on this channel and I tell you ये गलत है। आपने पिछली बार भी something कुछ लोगों ने EPA बोला था, that is not the correct answer. Please try CPCB. Well, it is hard to guess actually. Water Act. Correct. Perfect. Water Act 1974 is the correct answer because it is a statutory body, though it derives its powers from Air Act 1981. All right. Thank you. NGT is a statutory body or not? करेक्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी वो एनजीटी एक्ट 2010। 2010 NGT Act. Perfect. So this is a true statement. Okay, just a simple question. जो EPA Act है 1986 का, Environment Protection Act 1986, वो किसके बैकड्रॉप में आया था? मतलब ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था कि हमें EPA Act को अनविल करना पड़ा? भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। परफेक्ट। एंड उसमें कौन सा एलिमेंट था भोपाल गैस ट्रेजेडी में? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। GEAC comes under which act? GEAC, Genetic Engineering Appraisal Committee. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। Correct. Now the question is, NTCA is headed by National Tiger Conservation Authority. ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। What I'm asking is, NTCA is presided by whom? Environment Act सही है, WPA. एनवायरमेंट मिनिस्टर। Exactly, Environment Minister. And National Board for Wildlife? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। Minister. And who heads the National Ganga Council? प्राइम मिनिस्टर। Nice. Next question is, Environmental Assessment Act जो है वो कौन से एक्ट से बना है? Environmental Impact Assessment. ये EPA 1986। Correct. What is the difference between point sources and non-point sources of water pollution? हाँ तो गेस कर रहा हूँ, बताना कि सही है कि नहीं। तो एक सोर्स से अगर आ रहा है और रिवर बॉडी में एक सोर्स से मिल रहा है तो दैट इज पॉइंट सोर्स, और फिर आगे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट इज मल्टीपल पॉइंट्स और नॉन पॉइंट्स वाला। एक्चुअल में पॉइंट सोर्स क्या होता है ना, जो आपको दिख रहा है एग्जैक्टली कि या द एफ्लुएंट और दैट पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट इज बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम हियर ओनली, दैट इज पॉइंट सोर्स। बट जिसका आपको नहीं पता लग पाता वो नॉन पॉइंट सोर्स होता है। मतलब नॉन पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि नाउ यू कैन नॉट पॉइंट द सोर्स विच इज रिलीज्ड फ्रॉम वेयर। ऑलराइट, थैंक यू। Okay, so what is the Schedule 5 of WPA Act? शेड्यूल 5 में वो वर्मिन अलाउड हैं। वर्मिन मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं कि उनको हंट कर सकते हैं, और मतलब जो शुरू के 4 में नहीं है वो सब एनिमल्स इसमें डाल दिए हैं। Can you please tell me vermins? वर्मिन वो जिनको हम हंट कर सकते हैं,
अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो हार्म कर रहे हैं या फिर डिजीज ऐसी है तो मतलब ह्यूमन प्रॉपर्टी या लाइफ को हार्म कर रहे हैं. Name of those animals, if you can tell me. एक उत्तराखंड में कोई मंकी था, उसको भी उन्होंने वर्मिंग डिक्लेयर किया था. आई डोंट रिमेम्बर द नेम. ठीक है, उसके बाद रैट होता है, माइस होता है, क्रो होता है, ये सभी वर्मिंग crow की वगैरह. कैटेगरी में आते हैं. एग्जैक्टली. ओके. जो उसका शेड्यूल 6 है और इसका आपका WPA एक्ट का शेड्यूल 6 है, उसमें क्या आता है? प्लांट से रिलेटेड है ना शेड्यूल 6. यस, उसमें प्लांट को प्रोटेक्शन दिया गया है, सो यू नीड द लाइसेंस टू लाइक जस्ट कट इट. Who is the chairman of Central Zoo Authority? Again, environment minister. Perfect. Gargil Committee and Kasturi Government committees are associated with Protection of Western Ghat. yes. एनजीटी एक्ट जो है वो 2-3 एक्ट से रेगुलेट नहीं होते हैं. ठीक है, तो वो कौन कौन से एक्ट है जो एनजीटी के एम्बिट में नहीं आती है? सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. Yes. One I'm not recollecting. Forest Right Act 1927. Yes. Yes. एंड ये जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होते हैं, ये कौन सी एक्ट में है? क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में था ना. यस, 2006 का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसमें. Okay, so there is one statement prior to onset. Okay, the definition of critical wildlife habitat is incorporated in the WPA Act. True, false? I think this is false. Why so? This is related to the Forest Right Acts, not the WPA. Exactly. Now one more statement is there. For the first time, the Irula tribes have been given their habitat rights. True, false? I think this is a UPSC past statement where Irola tribe nahi Begas where the option false. Yes. And Baga tribes कौन से स्टेट में लाइक पर्टिकुलर दिखती है? Okay, let me give you the options. In central India, Madhya Pradesh. Yeah, okay. So there was no need of option even. ठीक है, बैगास है वो PBTG है या नहीं? The difficult question, but yes, they are. Yes, they are PBTGs and India have the 75 PBTGs, जिसमें से highest कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है PBTGs? Highest number of PBTGs. ये आंध्र प्रदेश में है. No. Yes, Odisha has the highest number. Okay, so now we have a question on NGT. Okay, so first statement is it is not a statutory body. Second statement is right to healthy environment constructed as a part of right to life under Article 21 is considered under it.
Third statement is provision of granting for raising the level of administration in scheduled area and welfare scheduled tribe is contained under Article 275 Clause 1. तो statement 3 is false. वो that is with respect to the scheduled areas. And statement 1, I don't remember it now. वो स्टैच्यू, हाँ वो भी फॉल्स है, वो मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ 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 सही है, वो एनजीटी एक्ट है 2010 का, अभी आप बता रहे थे। और मेरे ख्याल जो सेकंड स्टेटमेंट में उसमें जो आर्टिकल है 21, तो वो नेचुरल जस्टिस में आएगा ना, तो वो भी शायद ट्रू होगी। वो भी ट्रू होना चाहिए राइट टू लाइफ वाले में। Yes, yes. Okay, so what is blue flag certification? Blue flag certification is given by a non-profit organization. Presently I don't remember its name, but it is with respect to the beaches who are very clean. So they are given blue flag certification. This is with respect to France, if I am not wrong. Denmark. ओके डेनमार्क। एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी इसी से कुछ रिलेटेड है। FEE, Foundation for Environmental Education. FEE. All right, thank you. So now we have a question with us. So just listen it properly. In India, the use of carbofuran and triazophos is viewed with apprehension. These chemicals are used as a source of, first is pesticides, second is preservatives, third is fruit ripening agent, fourth is moisturizing agents. This is a PYQ. I don't remember the answer, but ये pesticide से related है ना? Yes, फुरान जो होता है ना, फुरान एक लाइक गैस है, ठीक है, विच इज वेरी डेंजरस। अब लेट अस सी द थिंग इज कि यहाँ पे जो गैस है, अगर वो इतनी डेंजरस है वो एलिमेंट, तो व्हाई इट वुड बी यूज्ड इन प्रोसेसिंग द फूड्स, ठीक है। यू कैन एलिमिनेट बी। नाउ इन थर्ड ऑप्शन इट इज मेंशन कि वो फ्रूट राइपनिंग के लिए होगा, तो व्हाई, लाइक इतना अगर डेंजरस होती है फुरान गैसेस, तो व्हाई इट वुड बी यूज्ड। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन है कि वो मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, ठीक है, यू आर यूजिंग दैट सर्टेन प्रोडक्ट ऑन योर बॉडी, ऑन योर फेस, सो अगेन दैट इज डेंजर। नाउ come back to the first option. So first is pesticides in agriculture. अगर dangerous है तो एटलीस्ट pesticide में तो यूज हो ही सकता है, so that you can kill that particular pest and insects. Good यार, thank you. FAME scheme comes under the Ministry of Transportation. True or false? Tricky question again. False होगा. Ministry of Housing and Urban Development. No. ठीक है, false है, but मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में आता है ना। heavy industries, yes. Electric vehicles are regulated under the Ministry of Heavy Industries. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए थी ना ये स्कीम। Okay, so there are 4 generation of biofuel production. Okay, can anyone tell me क्या क्या है उन 4 stages में, like generation 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में and 4 में? Okay, so generation 1 वाले जो बायोफ्यूल होते हैं उसमें फूड क्रॉप्स यूज होती हैं, 2 में नॉन फूड क्रॉप्स यूज होती हैं, जो जनरेशन 3 के बायोफ्यूल होते हैं उसमें एल्गी यूज होता है, एंड जो जनरेशन 4 होती है उसमें कार्बन सिक्विस्टर्ड वाली जो कार्बन होती है वो यूज होती है उन बायोफ्यूल्स को जनरेट करने में।
फोर्थ में कौन सी थी? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाली कार्बन। ओके ओके। Okay, what is organic farming and which state is the first under organic farming? First state is Sikkim, and organic farming is non-usual of chemical fertilizers. You know? Yeah, Sikkim is and वो कौन सा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट एरिया है? मतलब लाइक सिक्किम तो वो फर्स्ट स्टेट है, बट इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ज्यादा वहाँ की जगह है, उसमें आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। I don't remember. मध्य प्रदेश। स्टेट है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज्यादा की जाती है। Okay, so next topic is ZBNF. Can anyone just tell me the detail of this article? ZBNF, Zero Budget Natural Farming. तो ये रिसेंटली प्रोमिनेंस में आया। इसमें दे यूज सम प्री डिफाइंड टेक्निक्स जो पुरानी थी ना, और प्रोपोगेटर कोई सुहास करके कोई पर्सन थे, पाला समथिंग सुहास लाइक। और इसमें 3-4 चीजें होती है जैसे जीवामृत, वास्प, और ये सब चीज यूज करके और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। हाँ, उसमें मतलब मल्चिंग यूज होती है, जो मल्चिंग यूज करते हैं हम ताकि वो मॉइस्चर मेंटेन रहे। और जो ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड्स मतलब ऑर्गेनिक जो होते हैं ना, उनको यूज करते हैं। हाँ, एक मॉडिफिकेशन है, मतलब एक हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग का, नेचुरल फार्मिंग। कर्नाटका से स्टार्ट हुआ था ये। कर्नाटका और महाराष्ट्र। आई रिमेम्बर कर्नाटका, वो जो बॉर्डर स्टेट है, शायद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है शायद, वहां से। Yes, Karnataka only. Okay, so what is monoculture? मोनोकल्चर? Yes. एट अ टाइम पे एक ही क्रॉप मोनो का मतलब होता है सिंगल। कैन यू प्लीज रिपीट? मतलब प्रैक्टिसिंग द सेम क्रॉप यील्ड अगेन एंड अगेन, इट इज मोनोकल्चर। नो, एक ही वैरायटी होना क्रॉप की, मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसको बोलते हैं मोनोकल्चर। एंड दैट इज नॉट हेल्दी बिकॉज अगर एक को पेस्ट लग गया तो दैट विल स्प्रेड एंड विल क्रिएट हैवोक, एंड उससे जो जितना कल्टीवेशन है वो सब लाइक खत्म हो जाएगा। What is mixed farming? Then we have next one is crop rotation. हाँ, तो अभी जो बता रहा था ना कि प्रैक्टिसिंग वन क्रॉप यील्ड अगेन एंड अगेन, तो उसका ऑपोजिट है ये रेपिटेशन वाला जो सेकंड ऑप्शन आप बता रहे थे। और मिक्स फार्मिंग इज दैट की हैविंग मल्टीपल क्रॉप्स एट द सेम टाइम इन अ सेम फील्ड। नहीं, मिक्स्ड फार्मिंग अलग चीज है ना। मिक्स्ड फार्मिंग और एक वो मिक्स्ड क्रॉपिंग अलग है। मिक्स फार्मिंग में अच्छा, उसमें मेरे वो भी ऐड हो जाते हैं ना, ये एनिमल हस्बेंड्री भी ऐड हो जाती है। Correct. मल्टीपल क्रॉपिंग अलग अलग।
हाँ जो यार, यू आर मिक्स करेक्ट। क्रॉपिंग होता है उसमें क्रॉप्स यूज होती है, बट मिक्स फार्मिंग एज द जोकर सेट ना कि उसमें एनिमल हस्बेंड्री आ जाते हैं, वो मिक्स फार्मिंग होता है। सी डोंट गेट कंफ्यूज, ये भी PYQ है, मिक्स फार्मिंग, इफ यू विल लाइक गूगल इट। ये यूपीएससी ने अभी शायद रिसेंटली कुछ 14-15 के प्रीलिम्स में दे हैव आस्क्ड सच अ सिंपल क्वेश्चन, बट एज यू टोल्ड कि क्रॉप ज्यादा होती है, तो यू कैन सी हाउ पीपल गेट कंफ्यूज। ठीक है, जस्ट टेक केयर, फार्मिंग एंड क्रॉपिंग बोथ आर डिफरेंट। ओके ओके, थैंक यू। आई मतलब कंफ्यूजिंग टर्म्स है। Okay, so I found some data on the organic farming which we discussed. Okay, so let us see, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एक तो है सिक्किम, वो है जो वो फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। तो ऐसे ही एक यूटी भी है जो कि 100% ऑर्गेनिक है। कैन एनीवन प्लीज नेम इट? ये अंडमान है क्या? लक्षद्वीप है, ठीक है। एंड उसके बाद वो जो स्टेट थी जो टॉप करती है इस लिस्ट में, वो है मध्य प्रदेश। एंड देन नेक्स्ट वन इज राजस्थान, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। Okay, so there is one question. National Program for Organic Production is controlled and regulated by the Ministry of Agriculture. True, false? Sorry, we could not hear you. Can you please repeat? The question is, the National Program for Organic Production is operated and regulated by Ministry of Agriculture. True and false? ट्रू होना चाहिए। उसमें केमिकल, No, no, not chemical. Ministry of Commerce and Industry, MCI. ओके। Okay, so next question is, APEDA comes under which ministry? Agricultural and Processed Food Export Product Development Authority comes under which ministry? ये केमिकल मिनिस्ट्री में आता है शायद। No. फार्मा फार्मा वाली। अच्छा, अपीदा इज, आई थिंक ये कॉमर्स मिनिस्ट्री में आता है। Yes, MCI में, ये भी MCI का है। एंड जो पहले वाला क्वेश्चन था NPOP, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये दोनों इसी में आते हैं। What is biochar? BIOCHAR. वो पायरोलिसिस में उसका वो है ना प्रोडक्ट, पायरोलिसिस का मतलब वो लेफ्ट ओवर। जैसे जो वेजिटेशन होता है उसमें जब फायर हो जाती है, या फिर सोइल मैनेजमेंट जो सही से नहीं हो पाता है उसके आसपास का, और जैसे कोई क्रॉप होती है वो भी बर्न हो जाती है, तो दैट फॉर्म्स द बायोचार। और इसके बेनिफिट क्या है बायोचार के? इज देयर एनी एग्रीकल्चरल बेनिफिट ऑफ दिस बायोचार? Like if I say increases the crop yield and prevents the fertilizer runoff. So is it true or false? फॉल्स। इट इज ट्रू, ठीक है। सी जो बायोचार है ना, वो एक्चुअली में जो सोइल का मॉइस्चराइजर कंटेंट है उसको बढ़ा देता है एंड उसको फर्टाइल बना देता है, ठीक है। तो उससे क्या, उसमें मॉइस्चर जो होता है दैट रिटेन्स देयर, एंड देन आफ्टर दैट सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। एंड ऑल्सो लाइक जो मार्जिनल सोइल होती है जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन कम होता है, उसमें इट हेल्प्स टू इंक्रीज द कार्बन कंटेंट एज वेल। ओके। What is hydroponics?
इट इज द मतलब प्लांट्स हम ग्रो करते हैं विदाउट द यूज ऑफ सॉइल। उसमें वाटर में हम न्यूट्रिएंट्स एक्सटर्नली ऐड करते हैं। करेक्ट। एक्वापॉनिक्स। एक्वापोनिक्स में फिश यूज होती हैं, मतलब उसमें एक्स्ट्रा वो ऐड करने की जरूरत नहीं है फर्टिलाइजर्स या वो वाटर के अंदर। वो फिश का जो वेस्ट होता है वो उसको एज अ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। एंड एग्रोपॉनिक्स। सी एग्रोपॉनिक्स में क्या होता है ना, लाइक जो प्लांट होता है, प्लांट के नीचे से ना मतलब उसको सस्पेंड कर दिया जाता है एयर में उस प्लांट को, एंड फिर उसमें रूट साइड से ना ऐसे लाइक न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को स्प्रे किया जाता है। ठीक है, तो एग्रोपॉनिक्स मतलब जो हवा में ही कर दिया गया, उसमें आपको ना वाटर ना सोइल कुछ भी लाइक एडिशनली उसमें अलग से देना नहीं पड़ा, बट यू आर जस्ट लाइक पुटिंग द स्प्रेज ओवर दैट। ओके। Which is the only GM crop which is like cultivated commercially in India? कॉटन। BT cotton. Can you please repeat it? BT cotton, na? BT cotton. Yes, BT cotton is the only crop which is cultivated commercially in India. If I say that GM crops are totally safe for the health of people, so is it correct or not? फॉल्स। Okay. This And also. it brings issues to atmosphere or not? व्हाट? Sorry. GM crops has no effect on climate change, true or false? This is also True. seems to be false. फॉल्स। वो रेजिलिएंट होते हैं ना क्लाइमेट चेंज में। दैट इज फाइन, बट आई सेड कि उसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, वो रेजिलियंट होती है इसीलिए उन्हें बनाया गया, बिकॉज ड्रॉट आ जाता है या कोई भी लाइक नेचुरल डिजास्टर है तो उससे वो स्टैंड अलोन हो पाए, इसलिए जीएम क्रॉप्स को एक्चुअली में इंट्रोड्यूस किया है हमने। बट मैंने ये पूछा है कि क्या उसका उल्टा इफेक्ट हो सकता है क्या क्लाइमेट चेंज पे? उसका इफेक्ट हो, ठीक है, इट ब्रिंग्स इफेक्ट बिकॉज उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, एंड ऑल्सो अगेन अगर वो एग्रीकल्चर रन ऑफ होगा तो वही जो केमिकल वाला वाटर है दैट वुड बी डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द ओशन और सीज, एंड देन वो फिर इंटायर जो वाटर है वो केमिकल वाला हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, तो दैट विल ब्रिंग द एल्गल ब्लूम एंड देन eutrophication, and then entire process will keep on repeating. ओके। Sorry, can you please repeat that statement now? The statement was that the GM crops has no impact over the climate change. Okay, and according to you, this is true, isn't it? No, I'm saying it is false because it has effect. हाँ यार, मतलब how can something be impact free? It could have impact either positive or negative. That is also one of the angle की या clearly we can't say कि किसी का इफेक्ट नहीं होता है, दो कई चीजों का नहीं होता है, but yeah, that is a good idea. So next question is about the International Solar Alliance. First of all, headquarter. Gurugram. Then it was established by which COP? COP. कौन सा COP था इसके लिए?
2015 में कॉप 16 आई गेस। यस, पेरिस में ये हुआ था। यस, पेरिस वाला था। एंड इसका क्या मैकेनिज्म है, मतलब कौन सी कंट्री आईएसए का पार्ट हो सकती है? हाँ, तो प्रेजेंटली ट्रॉपिकल एंड नॉन ट्रॉपिकल कंट्रीज सारी आ रही हैं, बट इनिशियली इट वाज ओनली विद द ट्रॉपिकल कंट्रीज जहाँ पे जो ट्रॉपिक्स में फॉल करती हैं, बट नाउ रिसेंटली जैसे यूएस भी ऐड हो गया इसमें, तो आई थिंक मतलब ऑल एनकम्पासिंग। Yes. Okay, so there was a question in 2016 on ISA. Let me speak. First statement is that it was launched at the UNCCC in 2015. Second statement, the alliance include all the member countries. Okay, the second statement is false here. Not all the alliance, not all the UN member countries, but first is correct, 2015 वाला. 2015, correct. What is PM Kusum Yojana? वो सोलर प्लेट्स लगाने हैं उनको ट्यूबवेल्स पे, और उसके लिए। तो हाँ, सही बोल रहे हैं सर। कोई कृषि उद्यान वाली जो स्कीम है। Under which ministry PM Kusum is regulated? MNRE है क्या इसमें? Yes, MNRE. Okay, wait. Okay, so we discussed the generation of biofuels. Can anyone just repeat it? तो 4 generations है. First is food crops, second is non-food crops, and third is with respect to the organisms, especially fungi. Algae. And fourth, sorry. Third is algae, sir. Third generation is algae. अच्छा, हाँ. तो वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एल्गी ले लो या फिर उसके अलावा भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स ले लो. एंड फोर्थ इज दैट कार्बन सिक्वेस्टर्ड वाले जो थे ना, वो दैट इज द फोर्थ जनरेशन. Yes, correct. Okay, what is bioethanol? What is ethanol? See, it is easy. Bioethanol ko na, you have to equate with the fermentation process of making the alcohol. Okay. Then after that, biodiesel. What is it? Biodiesel. वही It is a renewable source such as vegetable, plant, animal oil. Okay, जो डीजल इंजन्स में मतलब जो बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं उनका जो ऑयल बन के यूज होता है, सो दैट इज बायोडीजल. एंड बायोएथनॉल इज फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ मेकिंग अल्कोहल. हाँ, वो बायो जो एथनॉल है वो शुगर जो मिल्स होते हैं उनके उससे बनता है, जो उनका जो वेस्ट होता है, और ये ऑयल से बनता है ना बायोडीजल. तो सतत इनिशिएटिव, व्हाट इज इट? RUCO initiative by
FSSI, reused कुकिंग ऑयल से बनाते हैं ना बायोडीजल. Yes. Yeah, somewhere about this Satat and that what you said ना रोको वाला, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. ओके बस इसमें इतना है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ओवरऑल ऑल दोज थिंग्स विच आर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल वो ली जाएगी. एंड जो रुको में था वेजिटेबल ऑयल पे वो स्पेसिफिकली राइट, उसमें वेजिटेबल ऑयल है एंड इसमें ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूल है. दैट इज इट. What is hydrogen economy? we हेल्थ सोर्स करना उसको साइकिल चलाते Your voice is not clearly audible, but okay. Now, see, hydrogen economy में क्या होता है? जो hydrogen होता है, that is most abundant resource in the atmosphere, and because of its availability, it is used as a low carbon energy source. So, because वो जैसे मिल जाएगा, तो you can convert it into the fuel. Okay. सो फ्यूल में हाउ इट इज यूज एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है फ्यूल सेल स्टैक से. ये एक सिस्टम होता है, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा देती है एंड आफ्टर दैट इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल. सो इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है? एक तो ये इजीली अवेलेबल है क्योंकि हाइड्रोजन मिल जाती है तो फ्यूल भी इजीली हो जाता है. उसके बाद ये रिन्यूएबल एंड नॉन पोल्यूटिंग है. ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो नॉन पोल्यूटिंग है. देन आफ्टर दैट इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? ये एक तो चैलेंजिंग है स्टोरिंग कैपेसिटी में. मतलब जो हाइड्रोजन का अगर आपने फ्यूल बना लिया सो दैट इज वन थिंग, बट टू स्टोर इट ब्रिंग्स अनदर चैलेंज टू यू. देन आफ्टर दैट ये रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है तो दैट कैन क्रिएट द tragedies. Okay. Then after that, lack of efficient photochemical water splitting technology, because जो उसमें फ्यूल होता है मतलब पहले हाइड्रोजन होती है उसको स्प्लिट करना पड़ता है उसके बाद वो फ्यूल बनता है. तो वो जो टेक्नोलॉजी अभी दैट इज नॉट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल एक्चुअली. तो वंस इट विल बिकम एक्सेसिबल द फ्यूल कैन बी जनरेटेड एंड सप्लाइड इजीली. What is Minamata Convention? I think this question was asked yesterday. Okay. What is it? Minamata Convention, it happened in Japan for the mercury, to eliminate the use of mercury. Okay, so now there is a question. Central Groundwater Authority, CGWA, is formed under EPA, Environment Protection Act. True, false? EPA नहीं. False. हाँ, yes. It is a correct statement. CGWA is formed under EPA only. अच्छा, okay. Central Water Commission is regulated by Ministry of Jal Shakti. True or false? Central Ministry of Jal Shakti, Central Water Commission. इट इज करेक्ट. सेंट्रल वाटर कमीशन है जो वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में बना था.
Okay, so hereby I guess we have done with almost all concepts of the like Shankar has been covered somewhere. So now if you want to ask some questions to anyone, you can ask. We have 10 minutes left with us. Ma'am, this is Garima. So I would like to ask one question, ma'am. Today's session have done. What is the topic? Am I audible, ma'am? Yeah, actually today we covered almost all convention protocols and pending issues regarding the climate change and genetically modified organisms. Okay, okay. Can I ask a question? हाँ जी बायोस्फीयर रिजर्व्स वो किसके अंडर आते हैं? मतलब वो ट्रू या फॉल्स बताना है. बायोस्फीयर रिजर्व्स established by the Act of Biological Diversity Act 2002. True या false? True. False है मैम. WPA में आते हैं. Is it? नो मैम, ये किसी भी इंडिया के किसी भी एक्ट के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व्स नहीं आते. ये आते हैं CBD. Okay, yes. ठीक है. ये आपकी आवाज शायद कट रही है सर. Dave, leave once and then join back. Leave once and then join. Okay, next question. CRZ जो रेगुलेशन जोन्स हैं वो किस एक्ट के अंदर आते हैं? Dish. कैन यू रिपीट मैम? I think EP होना चाहिए इसका. हाँ, यस मैम, EPA. बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स जो डिक्लेयर होती हैं वो कौन से एक्ट के अंदर होंगी? मतलब या CBD या बायोडाइवर्सिटी एक्ट? 2002 वाला एक्ट होना चाहिए इसका. यस मैम, करेक्ट. एंड इसी में ना वो 3 ऑर्गेनाइजेशन होती है. एक नेशनल लेवल पे होती है, एक स्टेट लेवल पे होती है एंड थर्ड एक कमिटी होती है. तो दैट इज लाइक थर्ड टियर ऑर्गेनाइजेशन. उसमें जो नेशनल होता है उसमें तो फॉरेनर्स जो होते हैं उनको अगर उनको परमिशन लेनी होती है नेशनल वाली से, और जो इंडियंस होते हैं उनको स्टेट वाली से. यस. Who declared the national park? वैसे सेंटर करता है विद लेजिस्लेशन बट स्टेट कैन आल्सो डिक्लेयर. अभी हाल ही में आसाम ने किया तो था रायमोना नेशनल पार्क. रायमोना, यस. आई गेस वो 6th नेशनल पार्क है असम का. जो ये साइंटिफिक रिसर्च है इज they are allowed under national park or wildlife sanctuary or biosphere reserves? रिसर्च अलाउड होती है बट वहां पे जाना, मतलब वहां पे जाके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना नेशनल पार्क में टोटली बैन है. WLS में अलाउड होता है. वो जो साइंटिफिक रिसर्च है मैम वो भी सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व्स में ही
है, मतलब जो नेशनल पार्क जो बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर आते हैं सिर्फ उनमें अलाउड है वो साइंटिफिक रिसर्च। बाकी में अलाउड नहीं होती है। एंड ऑल्सो टूरिज्म भी अलाउड है, बट दैट शुड बी इको टूरिज्म, मतलब सस्टेनेबल होना चाहिए वो। एंड दो वो भी अलाउड नहीं होते फिर। यस। उड़ीसा में एक मुझे तो आउट ऑफ द क्वेश्चन होगा ये सॉरी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो, उसका स्टेटस क्या है और कहाँ मिलता है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आई गेस एक तो ये लिस्ट कंसर्न्ड है फर्स्ट, मतलब जो इसका स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न्ड है। एंड ये गहिर माता वहां पे, मतलब जो उड़ीसा का कोस्ट है वहां पे गहिर माता सेंचुरी है, उसमें मिलता है। भितरकनिका एंड ऑल ये सभी जो रीजन्स है दे आर नोन फॉर दैट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। आई थिंक आपने उल्टा कर दिया मैम, वो जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो तो शायद उसमें मिलता है बहितकर्णिका में, और जो गहीर माठ है उसमें वो ऑलिव रिडले टर्टल है। नहीं, एज सच कोई डिलिनेशन थोड़ी कि वो मिलता नहीं है, ऑलिव रिडले तो दोनों में मिल सकता है ना। तो ये स्पेसिफिक फेमस, मतलब वो फेमस है ना उसके लिए, इसलिए। ओके, माइट बी। कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में क्या डिफरेंस है? कंजर्वेशन रिजर्व्स एक्चुअली में नेशनल पार्क एंड जो WLS होते हैं उनके एडजेसेंट एरियाज में डिक्लेयर किए जाते हैं। कम्युनिटी रिजर्व्स जो बेसिकली लाइक नेबरहुड एरियाज में भी हो सकते हैं। एंड जो दोनों ही है वो WPA एक्ट 1972 के रेगुलेशन में। यस मैम। अभी जो EIA 2020 जो रूल्स आए थे उनके बारे में कुछ एक दो पॉइंट। ओके, सो आई थिंक एक तो उसमें ये पॉइंट था कि जो अब से स्क्रीनिंग होगा ना, मतलब पहले स्क्रीनिंग वाज देयर, अब से उसमें स्क्रीनिंग नहीं होगा। मतलब जो चेकिंग होती है ना, आई गेस स्क्रीनिंग को हटा दिया अब से। सारे प्रोजेक्ट नहीं हटा है, नहीं सारे प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ कुछ। हाँ, उसमें कुछ जो B2 कैटेगरी में थे जो कुछ प्रोजेक्ट्स, उनको वहां से हटा दिया है, मतलब उनको उनके अंदर B2 के अंदर डाल दिया है। और B2 में ऐसा होता है कि आपको स्क्रीनिंग की या क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती है मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, और पोस्ट क्लियरेंस उन्होंने अलाउ कर दिया है, पब्लिक हियरिंग का भी टाइम कम कर दिया है। और जो ड्राफ्ट रहते हैं ना उनका दिन भी कम कर दिया है, जो पब्लिक में ड्राफ्ट प्रपोजल डालते हैं उसका भी। हाँ, यस सर, करेक्ट। अच्छा, एक आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन, जो ये फॉरेस्ट जो आते हैं वो कौन से लिस्ट में आते हैं? मतलब कॉन्करेंट जो 7th शेड्यूल में तीनों में आते हैं। Earlier, पहले वो स्टेट लिस्ट में थे आई गेस, फिर 42 अमेंडमेंट 1976 को करके इट वाज ब्रॉट अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। यस मैम, करेक्ट। इस जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, क्या वो यूनियन टेरिटरीज पे भी है? इंटायर इंडिया पे है WPA। ओके, करेक्ट। 2018 से जब से लाइक जो जम्मू कश्मीर था उस पर जो डिस्प्यूट था, तो उसके बाद से जब से जम्मू, मतलब पहले जम्मू एम्बिट में नहीं था WPA के, बट आफ्टर दैट 2019 का जो वो केस हुआ था 370 आर्टिकल वाला, उसके बाद से जम्मू इज ऑल्सो द लाइक ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस WPA।
Does the Wildlife Protection Act covers the coastal areas also? True or false? It should cover. Coastal को भी होगा. हाँ, यस मैम, करेक्ट. कोस्टल एरियाज भी इसके अंदर आते हैं. अब बिकॉज एक और चीज होती है मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, सो वो भी WPA से रेगुलेट होता है ना, तो अगर कोस्टल नहीं होता तो फिर वो क्यों बनता मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज वाला लेजिस्लेशन? हाँ यस मैम, उसी से ही है ये. ओके, सो मैंने वो भी चेक किया है गहिर माता एंड भितरकनिका वाला. सी व्हाट आई कैन सी इज मतलब सी क्या है ना, जो गहिर माता कोस्ट है ना वो भितरकनिका का ही पार्ट है. ठीक है, तो गहिर माता बीच उसी के अंदर है. हाँ वही आई वांट टू से. ठीक है, तो उसमें मतलब ठीक है फेमस वाला कुछ पॉइंट हो सकता है, बट एज सच ना वो मतलब डिमार्केटेड नहीं है. ठीक है, कि वहां नहीं हो सकता, मतलब लाइक जस्ट टेलिंग यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि एज सच वो कोई डिमार्केटेड नहीं है. ठीक है, बस ऑलिव विडले ठीक है गहिर माता के आसपास होते हैं, एंड जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं वो थोड़े भितरकनिका के उस साइड होते हैं. ठीक है, बट इन केस ऐसा अगर उल्टा आ जाए, दोनों रिवर्स आ जाए, तो आपको वो फॉल्स नहीं मानना है. ओके मैम, थैंक यू. हमने एक चीज रह गया हमारे वो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर वो 8 मिशंस है ना. तो मैं बोल देता हूँ एक बार वो 8 मिशंस. सी उसमें ना जस्ट रिमेम्बर लाइक दिस, उसमें एक तो आएगा सोलर मिशन, एक होता है वाटर मिशन. ठीक है, 2 तो ये हो गए. फिर 3 उसमें होते हैं सस्टेनेबल वाले. ठीक है, एक उसमें सस्टेनेबल हैबिटेट होता है, एक सस्टेनेबल हिमालय वाला होता है, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है. ठीक है, 5 आर डन. ठीक है, नाउ 3 आर लेफ्ट ना. तो उनमें से एक स्ट्रेटेजिक जो नॉलेज होती है उस पे होता है, एक बायो एनर्जी पे होता है, 1 मोर इज देयर. हाँ या वो एनर्जी जो फेम वाला है ना, एनर्जी एफिशिएंसी वाला. हाँ, वो एक एनर्जी एफिशिएंसी, एक ग्रीन इंडिया और स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज. ओके, ग्रीन इंडिया. ठीक है, ओके. बाकी इसमें ना बेसिक टॉपिक्स है, जैसे बायो एक्यूमुलेशन है, तो बायो मैग्निफिकेशन है. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द बेसिक टॉपिक्स. ठीक है, तो इनको एक बार खुद ही गो थ्रू कर लेना. तो शायद हमने डिस्कस किए होंगे सेशन 1 में, अब स्टिल एक बार देख लेना. ठीक है, इंपॉर्टेंट है बट इजी है, तो जस्ट गो थ्रू दैट ऑल्सो. ओके मैम. So shall we conclude now? Yeah, sure. Okay, so thanks everyone for joining, and this was the last session of the environment, and from tomorrow we would be starting with the art and culture, and that would go for 3 days. So by today we have completed the environment and ecology from different sources, including all the PYQs. So just to go through these lectures again, and also these lectures are available on the YouTube channel of Accomplish IS. So if you haven't joined, or like if you're missing on any point, so you can ask in the channel or group, or you can just watch them over the YouTube. Thanks a lot.